चरेम सूर्या चन्द्रमसाभिव कुलदगता जानता संगमे मही। ॐ स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाभिव कुलदगता सर एक फोटो, एक फोटोग्राफ प्रोडक्शन आइए प्लीज, आ जाइए। Everybody to please settle down. Namaskar and a very good morning to one and all present here. Our esteemed guest of the day, Dr. S.C. Vats, Chairman of Vivekananda Institute of Professional Studies, Professor Saloni Priya, Dean of English Department, Vivekananda Institute of Professional Studies, Professor Subha Rao, Chairperson, Law Department, Vivekananda Institute of Professional Studies. I would also like to extend heartiest welcome to our honorable mentors and patrons, Sri Ashok Pradhan, Director, Bharatiya Vidya Bhavan Delhi Kendra, Sri Rajesh Mishra, Registrar, Bharatiya Vidya Bhavan Delhi Kendra, Dr. C.K. Arya, Manager, Bhavans Mehta Vidyalay, Dr. A.K. Sharma, REO Bharatiya Vidya Bhavan, Dr. Anju Tandon, Principal Bhavans Mehta Vidyalay, Ms. Jagriti, Vice Principal Mehta Vidyalay, all our faculty members. We also have students of DLED, Bhavans Leelavati Munshi College of Education and Class 12 Mehta Vidyalay. It is a profound honor and privilege for me to be welcoming a distinguished luminary in the field of education, a visionary whose influence has shaped the minds of countless individuals. We are truly humbled by the presence of Dr. S.C. Vats, the chairperson of VIPS, that is known as. I extend heartfelt thanks to the dignitaries for illuminating this event with the lamp of knowledge. We are also thankful to Dr. C.K. Arya for giving an auspicious start of the program with the chanting of Mangalacharan. I would now like to introduce the esteemed guest of the day to all our audience. In the heart of New Delhi stands Vivekananda Institute of Professional Studies Technical Campus, a testament to the vision and dedication of its founder, Dr. S.C. Vats. A respected figure in both education and governance, Dr. Vats embodies the ideals of service and innovation, seamlessly blending his role as a lawmaker, physician and academician. Dr. Vats established WIPS in 2000. Under his leadership, the institution has carved a niche for itself in the field of law, information technology, journalism, and has become one of the few selected affiliated institutions with GGS IPU to have received A++ grade by the NAAC.
Dr. Watts, beyond academia, Dr. Watts is a dedicated public servant. As a member of Delhi Legislative Assembly, his tireless efforts were recognized with the prestigious Best Legislature Award in the year 2006. He is also a renowned physician, highlighting the multifaceted expertise and unwavering commitment to societal well-being. Recognizing education as the cornerstone of progress, Dr. Watts extended his philanthropic endeavors to this sphere. He previously chaired the governing bodies of various Delhi University colleges, fostering academic excellence and nurturing future leaders. Guided by the vision of providing a top-tier professional education in India and abroad, WIPS under Dr. Watts' leadership has blossomed into a vibrant learning hub. This aligns perfectly with the institution's mission, which embodies Swami Vivekananda's ideals of man-making, character building and nation building by offering a diverse range of undergraduate and postgraduate programs in the fields of law, journalism, mass communication, computer applications and many others. WIPS has also started a lot of emerging courses in emerging technologies like artificial intelligence, Internet of Things, machine learning, data science and many more. This college or this institution also addresses the evolving needs of society and empowers students not only to reach their full potential but also become responsible and impactful individuals, contributing meaningful to the nation's progress. This vibrant community thrives with over 8,000 students, a dedicated faculty and staff of over 400 and a strong alumni network exceeding 18,000 students or ex-students. This robust ecosystem fosters an enriching environment where the students can benefit from expert guidance, building lasting connections and paving the way for successful careers. Dr. Watts' influence extends beyond WIPS. His previous involvement in the board of governors of institutions like IIM Raipur and Symbiosis International University reflects his commitment to shaping the national educational landscape. Additionally, his formal role as the trustee of National Book Trust underscores his dedication in promoting literacy and intellectual enrichment. Despite his achievements, Dr. Watts remains grounded in the teachings of Swami Vivekananda, his spiritual guru. As an ordained discipline of Ramakrishna order, he embodies the spirit and service and holistic education espoused by his mentor. His lifelong dedication to realizing Swami Vivekananda's vision of harmonious society built on education and compassion is a testament to his unwavering commitment to humanity. Dr. Watts stands as an inspiration in the landscape of Indian academia and governance. His tireless efforts in various spheres has left an indelible mark, enriched countless lives, and shaped the nation's progress. As India marches forward, Dr. Watts' legacy of service and excellence will continue to illuminate the path for generations to come. Sir, we are very proud to be welcoming you. And we look forward to hearing your perspectives on various themes. And I would now like to request our director, Shri Ashok Pradhan ji, to welcome Dr. Watts with a bouquet, a silver medallion and publications of Bharatiya Vidya Bhavan, Delhi. Thank you so much, sir. I would now like to request our Registrar Shri Rajesh Mishra ji to present a potted plant as a small gesture of our gratitude to our honored guest. May I also request
Sri Rajesh Mishra ji to present a pot to Professor Saloni Priya, Dean of English Department from Vivekananda Institute of Professional Studies. I would request sir to please present a potted plant to Professor Sudha Rao, Chairperson of Law Department, Vivekananda Institute of Professional Studies. Thank you so much, sir. As a mark of respect, we present you with these humble gifts. May this bouquet symbolize fragrance of your wisdom. These books add to your ever-growing knowledge. This plant pot represent the enduring nature of your contributions, and this silver coin be a small reflection of your invaluable worth. As we move forward, we would like to give a small presentation about our institution, our organization. Bharati Vidya Bhavan started by Dr. K.M. Munshi, the founder of Bharati Vidya Bhavan, was a gifted person with foresight and had apprehended that India's cultural heritage and history and its scientific contribution to the world, its languages, its literature and ethical values will not get their due place due to a variety of reasons. Therefore, he established Bharati Vidya Bhavan to preserve, promote and disseminate Sanskrit and Sanskriti. Our motto is Ano Bhadraha Kratvoyantu Vishwadaha, meaning let noble thoughts come to us from all directions, which is a Vedic mantra taken from Rig Veda. Bharati Vidya Bhavan is also following the ideal of Vasudev Kutumbakam, that is, the entire world is one family since its inception. Since then, Bharati Vidya Bhavan has been an institution which is working tirelessly for the preservation of Sanskrit and Sanskriti. Our headquarters are in Mumbai on K.M. Munshi Marg, Chowpatty. And some of the major achievements of Bhavan are Government of India has given or has honored Bhavan with a lot of awards. Prominent among them being Rajiv Gandhi Award for National Integration, Communal Harmony Award, International Gandhi Peace Prize, which is a very prestigious award, and Educational Institution of National Eminence, a status which is given to a very handful of institutions all over the country. Bhavan's Delhi Kendra, that is the campus where we are sitting here, was built in the year 1957, so it has a very long legacy. The foundation stone was laid by our late first President Dr. Rajendra Prasad, and this is our former first Prime Minister of India, Dr. Pandit Jawaharlal Nehru, inaugurating the Delhi Kendra building. Prominent features, as we all know, it is very centrally located near India Gate and Connaught Place and India Gate, very well connected. It's a charitable, not-for-profit institutions, and it is guided by educational excellence and values, and is not a commercial enterprise. These are the list of institutions which are affiliated institutions. Bhavan's Leelavati Munshi College of Education, which was established in the year 2016. It is a teacher education program with 2 courses, that is B.Ed and Diploma in Elementary Education. Bharati Vidya Bhavan College is the newest additions in the galaxy of institutions of Bhavan, and at present we are running 5 courses affiliated to IP University. Bhavan's Mehta Vidyalaya is a very old institution. If I am not wrong, it started in the year 1950 and with over 2,000 students. We have SP College of Communication and Management, which runs various diploma courses in mass communication, marketing, sales, materials management, financial management and digital marketing. We have another branch which is known as the Jawaharlal Nehru Academy of Languages, where all the foreign languages plus English are taught to the students as various diploma and certificate courses. Next is Bhavan's Institute of Astrology, is a very well-known name in the field of astrology, where we have 1 year Jyotish Alankar, 1 year Jyotish Acharya and research classes. Bhavan is quite known for that. We have also Sri Shankaracharya Sanskrit Mahavidyalaya, where foundational courses in Sanskrit are being run, and we have 6-month certificate courses in functional Sanskrit, and recently we have also got affiliated to Central Sanskrit University. Moving forward, Bhavan Center of Indology is running courses in various, various fields. For example, Yoga Vidya, acupressure, holistic healing,
healthy lifestyles, healthy diet regime, interior designing, Vastu Shastra, numerology, palmistry, then 6 months I am not able to see the things there. But yes, these are some of the ancient knowledge, you can say rich knowledge systems which are being taught to the students. Additionally, we have 2 acres of land where this is a proposed center of Indology which it has been conceptualized. Okay, next. Some of the prominent guests we have in Bharatiya Vidya Bhavan over the past or the past years. So Pandit Jawaharlal Nehru was a regular visitor of our Prime Minister, ex-Prime Minister, Mr. Shri Rajiv Gandhi ji. Then next, Atal Bihari Vajpayee ji releasing 1 millionth copy of Ramayana and Mahabharata. Then again, Prime Minister Shri Manmohan Singh ji is here, and Shri Pranab Mukherjee is addressing a gathering on 75 years of Bharatiya Vidya Bhavan. Then we have Dr. Karan Singh, ex-Rajya Sabha member and a profound scholar, Dr. S.C. Bharadwaj, Sri William Mark Tully from BBC. Professor Lokesh Chandra, a very renowned scholar. Next is we have Professor C.B. Sharma, who is the former NIOS, but he was here when he was the chairperson NIOS. Professor Dhananjay Joshi, Vice Chancellor of the newly formed Delhi Teachers University. Dr. Subhash Kashyap, former Secretary General Lok Sabha, was here to address. Dr. Murli Manohar Joshi ji, former HRD Minister of India, was also here to share his views on Gandhi ji. Then we have Dr. Pranab Mukherjee ji, he was here again to share his ideas on Gandhi ji and their relevance. In this picture, we see 2 ex-presidents of our country. So in 2002, Bharatiya Vidya Bhavan's then president, Shri R. Venkat Raman, receiving the Gandhi Peace Prize Award from the then president, that is, can we have the previous picture? Yes, from the then president, Dr. APJ Abdul Kalam. Next. Our registrar sir was meeting with the Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor of IB University. Next. So, regarding Bhavan's activities, since Bhavan is meant for the promotion of Indian Sanskrit and Sanskriti and India's cultural heritage, there is a tradition of organizing a Sangeet Samaroh to commemorate the foundation day of Bhavan. So, every year for the past, since 2009-10, we have been organizing this Sangeet Samaroh in the month of November, and we have invited top of the top artists in the field of Indian classical music and dance. Some of the prominent names being Pandit Jasraj, Pandit Birju Maharaj. So you can say all these are very top names in the field of Indian classical music. Then we organized Gandhi lecture series where again very illuminated persons and distinguished speakers were invited to share their ideas. So we had Sri Pranab Mukherjee ji, former president, Dr. Subhash Kashyap, Dr. Murli Manohar Joshi ji, Dr. R.C. Lahoti, former Chief Justice of India. So, and various other renowned scholars were there. We also organized Kavya Goshti, which is organized once every year generally to celebrate the Hindi Divas. So these are some of the pictures from the Sangeet Samaroh, the annual program which happens. And during this program, Bhavan Sangeet Shikhar Samman is also presented to one of the prominent musicians or classical music maestro. So we can see for every year there has been a different person receiving this Bhavan Shikhar Samman. In 2010, we have Ustad Zia Fakhruddin Dagar, 2011 Shri Priyan Krishnan, 2012 Pandit Birju Maharaj, 2013 Pandit Hari Prasad Chaurasia, 2014 and 15 Dr. Kumari Yamini Krishnamurthy and Srimati Girija Devi. 2016 and 17 we had Pandit Jasraj ji and Shri TV Shankar Narayanan ji. Next. 2018 and 19 Srimati Ashwani Bina Deshpande ji and Dr. Jayanti Kumaresh. Then 2012 and 13 Dr. Bala Murli Krishnan and Ustad Abdul Rashid Khan. Besides this, Bhavan also has a publication division where
Again, it's not a commercial enterprise where books and manuscripts and various other publications are taken out to promote Sanskrit and Sanskriti. So these are some of the prominent publications in some recent years. And say Gandhi's thoughts and philosophy. So when we celebrated or organized this lecture series, so this book came out as a kind of a memento. It has addresses of all the prominent people which we invited in order to commemorate the 150 years of Gandhiji. Then English Sanskrit Dictionary is one of our prominent publications, and till date we are still working on that, and 7 issues are out. These are some of the other publications: Sanskrit on the Silk Route, Sanskrit on the Maritime Route, Sanskrit and Europe, and some publications by our founder Dr. K.M. Munshi ji. Next. So these are some of the other publications which basically throws light or explains about the classical forms of Indian music, Abhinav Gupta, Brihadeshi, etc. Next. So again, some prominent books on Indian classical music. And annual digest. Every year during the Sangeet Samaroh, we also take out annual digest with a particular theme. So 2009 onwards, we can see these are the different themes on which annual digests have been taken out. So these are some of the prominent people speaking about Bharatiya Vidya Bhavan, and these are also given on the website. So we have messages from Narendra Modi ji and Pranab Mukherjee ji. Next, Shri Atal Bihari Vajpayee ji and Dr. APJ Abdul Kalam. Next, Shri Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad. So this was a very small brief about Bhavan. I thank all the dignitaries and the audience for giving a very patient hearing. I would now like to invite Shri Ashok Pradhan ji to deliver the welcome address. और भारतीय विद्या भवन ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, जिसमें श्री सुरेश चंद्र दत्त जी, उनके साथ प्रोफेसर सुब्बाराव और डॉक्टर शालिनी प्रिया, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है इनकी, उससे यहाँ पर आए हैं और हमारे बच्चों को देखने का उनको एक अवसर मिला। मैं आप बच्चों को भी इसके लिए बधाई देता हूँ और आपका भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि भारतीय विद्या भवन में इस प्रकार के लोगों का आना, आपसे मिलना और आपको जो भी अभी कहें कि बताएंगे वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात होगी आप सबके लिए। आप विशेषतः ये देखिए कि ये बच्चे क्लास 11-12 के हैं और ये अगले 6 महीने में, साल महीने में भारत और विद्या भवन स्कूल छोड़ के आगे चले जाएंगे। इसलिए इनको भी पता होना चाहिए किस प्रकार की कार्यशाली आपके यहाँ चल रही है। विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, जिसके आप हेड हैं और चला रहे हैं, उसमें क्या क्या हो रहा है ये भी बड़ी आवश्यकता, आप सबको जानने की आवश्यकता है। इनका बहुत ही सुंदर 5 एकड़ में बड़ी भारी इनकी जगह है, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, बहुत तरीके से बनाया हुआ है और मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ किस प्रकार से आपने लेकर आगे बढ़े भारतीय विद्या भवन। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भारतीय विद्या भवन के विषय में सिर्फ 2 बातें और ऐड करना चाहूँगा कि भारतीय विद्या भवन की स्थापना 1938 में हुई थी, जब कि भारत जो है वो भी ब्रिटिश रूल के अंडर में था और उस समय में उनका उद्देश्य क्या था, भारतीय संस्कृति और संस्कृति को आगे बढ़ाना। उन हालात में जबकि ब्रिटिश रूल चल रहा था और ब्रिटिश रूल का मतलब ये था कि भारतीय संस्कृति को समाप्त करके उनका अपना अपना काम डालें, और यही एजुकेशन सिस्टम से भी हुआ कि जितने भी संस्कृत के हमारे बहुत से जो विद्यालय थे उन सबको धीरे धीरे कम हो गए, क्योंकि उन्होंने 1835 से इंग्लिश भाषा को बढ़ाने का प्रयास किया एजुकेशन से, और भारतीय विद्या भवन के
जो भारतवर्ष का विशेष वर्ग था संस्कृत को आगे बढ़ाने का, वो सब खत्म कर दिया। परंतु इसी बात से प्रभावित होकर हमारे मुंशी जी ने इसको शुरू किया और उसमें भी महात्मा गांधी का उनको आशीर्वाद मिला हुआ था। और जब इसको शुरू किया गया तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय विद्या भवन का उद्देश्य बराबर ये रहा है कि भारतीय संस्कृति को एजुकेशन सिस्टम के साथ बढ़ाएं। और आपको पता ही है कि इंडिपेंडेंस के बाद भी जो एजुकेशन सिस्टम यहाँ चल रहा है वो मोस्टली टुवर्ड्स वेस्टर्न सिस्टम रहा है। और उसके साथ भी हम लोगों को कोर्सेज जो चलते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया हम लोगों ने, परंतु उसके साथ साथ भारतीय संस्कृत संबंधित जितने भी विषय हैं उन सब से हमारे बच्चों को सबको हमने बताया गया। और आप में से खड़ा होकर कोई बोलिए कि आप जब से आए हैं तब से क्या आपने देखा नहीं क्या क्या हो रहा है? कोई भी खड़ा होकर बोलो, बोलो भाई। हाँ भाई, कोई भी खड़ा हो जाइए। अरे क्या क्या आपने देखा है यहाँ भारतीय संस्कृति की संबंधित? अरे भाई ऐसा भी क्या है? मैं तो उम्मीद करता हूँ। ये सब बोलने को तैयार है। हाँ तो बोलो, एक कोई भी एक खड़े हो जाओ यार। अच्छा बेटा बोलो, एक मिनट। बहुत जल्दी बोलो। यस यस, खड़े होकर। हाँ, जब आप कौन सी क्लास में ज्वाइन किए थे यहाँ? 6th से 6th से 12th तक आपने क्या क्या देखा अदर देन द एजुकेशन सिस्टम? यहाँ बुला लें सर, माइक पे बुला। आजा बेटा, मैं इसको सिर्फ यही बताने की आपका प्रयास कर रहा हूँ कि भारतीय विद्या भवन में जो भी एजुकेशन संबंधित है उन सबको चलाने के साथ साथ भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हाँ बेटा जल्दी बताओ, 2 मिनट में बोलो। शाबाश 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 शाबाश। माइक माइक सामने रखो। सामने आगे आ जाओ, बोलो। सर हाँ सारे रिलीजन एक साथ एक ही बिल्डिंग के अंदर, हाँ ठीक है, बोलो बोलो। बोलो सब एक साथ एक ही बिल्डिंग के अंदर, सब साथ में अच्छे से स्टडी, सब कल्चर एक। और संस्कृत सीखी नहीं सीखी? नो सर हिंदी। अरे भगवान से क्यों? बोलो क्या क्या सीखा तुमने? यूनिटी। हाँ, और सारे धर्मों के विषय में बोल रहे थे ना, बहुत अच्छी बात है। यस सर। हाँ बेटा आजा। आ जाओ आप। सर योगा क्लासेस एक साथ होती हैं, संस्कृत क्लासेस में सारे बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, डाइवर्सिटी और उस सब के बारे में हमें सिखाया जाता है। सर बहुत सारी चीज़ें हैं सर। थैंक यू। आप कुछ कहो बेटा? बोलो बेटी। वैदिक मैथ्स, कल्चरल वैल्यूज़, हमें अपने संस्कारों को कैसे अपहोल्ड करना है, ये सारी चीज़ों की हमें नॉलेज दी जाती है। ठीक, थैंक यू। आप लोगों को कुछ अजीब सा लगा हुआ, बच्चों को हमने बुलाया, परंतु इसलिए बुलाया कि उनको पता तो लगे कि हम भारतीय विद्या भवन में एजुकेशन के साथ साथ क्या करें। कुछ कहना है? आओ आ जाओ बेटा। हमारा स्कूल एक क्लब ऑर्गेनाइज करता है जिसमें कि जैसे उसका नाम कला निपुण्य है, तो उसमें हमारे स्कूल के काफ़ी बच्चे इंटरेक्टिव होते हैं, जिसमें कि हम जो भी चीज़ें स्कूल में बनती है, क्रिएटिव सेक्शन होता है, स्टॉक सेक्शन होता है, तो वो सब मिलके वो चीज़ें सेल करते हैं। तो हमारे स्कूल में ऐसे हम काफ़ी चीज़ें जो बच्चे बनाते हैं स्कूल के, हम वो भी सेल करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी हमारा स्कूल हमें यहीं से सिखाता है। थैंक यू। क्षमा कीजिएगा, मैं सिर्फ इन लोगों को इसलिए लाया था कि कम से कम जो भी एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ भारतीय संस्कृति संबंधित क्या बातें हम लोग कर रहे हैं, इनसे आप थोड़ा समझ लेते हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय विद्या भवन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको इनकम टैक्स से टोटली अलग कर दिया है। इसको जो भी कुछ पैसा भगवान लोग डोनेशन दें उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, और भारतीय विद्या भवन के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि सारा जो भी पैसा आता है वो सब इन चीज़ों में खर्च होता है। और इसके जो भी हमारे ट्रस्टीज़ हैं या पुराने फाउंडर्स के सिस्टम को कोई पैसा नहीं दिया जाता। तो ये भारतीय विद्या भवन का अपना एक बड़ा भारी है। और उसके साथ साथ आपको पता होगा, अभी इन्होंने कहा बहुत से एडवांस मिले,
जो महात्मा गांधी एक संबंधित अवार्ड है, उनका नहीं, वो गांधी लेक्चर नहीं, गांधी पीस प्राइज 2002 में मिला था। भारतवर्ष में बहुत कम, दो ही लोग हैं, दो ही संस्थाएं हैं जिनको मिला है, एक भारतीय विद्या भवन को और एक जो गोरखपुर की वो सारे संबंधित गीता प्रेस को पढ़ता है। तो ये सब चीज़ें लेना मैंने सोचा आपको बताऊं, परंतु मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जैसी संस्था बहुत इम्पोर्टेंट है। इस संस्था के विषय में भी आप लोगों को अभी आप बोलेंगे तो पता लगेगा। जान लीजिए कि इस प्रकार की संस्था किस प्रकार का काम कर रही है और यहाँ पर लॉ, जर्नलिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरीके की चीज़ों में सारे बहुत प्रोग्रेस हो रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट्स आपके पास हैं और वो भी एक तरीके से उन चीज़ों को सामने ले जा रहे हैं जो कि लोगों की नॉलेज के लिए और साथ साथ प्रोफेशन में भी उनके काम आएंगे। इस प्रकार का काम हो रहा है और उसके साथ साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि श्री एस.सी. वत्स साहब ये इस चीज़ के हेड हैं और चला रहे हैं। वो वैसे भी कांग्रेस के भी पार्ट रहे हैं, भारतीय विद्या भवन जनता पार्टी के बीजेपी के बन रहे हैं, उसके बावजूद भी सब चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं उनका आभारी हूँ कि इस प्रकार का काम कर रहे हैं जिससे कि हमारे बच्चों को आज बीए करने के बाद, सिस्टमेट करने के बाद कोई भी काम करके वो इस प्रकार की चीज़ें सीख सकते हैं जिससे कि वो उनकी नॉलेज बढ़े और उनको किस प्रकार का अपॉइंटमेंट भी मिल सके इस तरीके की इन चीज़ों में। मैं और समय नहीं लेना चाहता, मैं ये चाहूँगा कि एस.सी. वत्स साहब आकर अपने उसमें बताएं और हम सबको इस बारे में आभारी करें। हमारे छात्र लोग और हमारे जो संकाय के लोग हैं, शिक्षा संकाय के लोग, उन सब लोगों का बहुत स्वागत है यहाँ। अशोक प्रधान साहब एक महान संस्था हैं, वो स्वयं में एक संस्था है और मेरे आदर्श वो तब से रहे जब से मैं दिल्ली महानगर परिषद का सदस्य बना 38 साल की उम्र में, तब से वो मैं उनको अपना आदर्श मानता था। क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने के बाद व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति हो जाता है, उसके व्यक्तित्व का विस्तार होता है और पूरा संसार उसकी तरफ बड़ी उम्मीद के साथ, आशाओं के साथ देखता है। अशोक प्रधान साहब उन सब कसौटियों पर खरे उतरे जो जीवन में चुनौतियाँ आती हैं, प्रलोभन आते हैं, हर प्रकार से व्यक्ति को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। एक अशोक प्रधान साहब थे जिन्होंने अपने विवेक को संभाल के रखा, वो मेरे आदर्श हैं। उनके लिए मेरे हृदय से मैं बहुत, जब आपने प्रपोज किया कि यहाँ आना है तो मुझको कोई संकोच नहीं हुआ। मुझे कहा कि मुझे अच्छा लगेगा कि उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आज तो मैं विशेष तौर से आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। क्योंकि आदर्शों पर चलना ये आज के परिवेश में एक बहुत चुनौती हो गई है और हम लोग जिस पाश्चात्य सभ्यता के दौर से गुजरे हैं, हम लोगों का पूरा जो चिंतन है वो उसी प्रकार से विकसित हुआ। वो सब चला गया, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनवधीतमस्तु मा विद्विषामहे। Where a teacher and a taught, they used to sit together and embark on a journey of attaining knowledge, both physical and metaphysical. केवल भौतिक ज्ञान नहीं, उससे परे का जो ज्ञान था, जो पराविद्या थी, पराविद्या का ज्ञान होना
ये तो सब जितना है आपके पास ज्ञान है इस वक्त पर, वो सब अपरा विद्या है। 4 वेद, 6 वेदांग, व्याकरण, छंद, ये सब मिलाएं तो आप अपरा विद्या है। अंगिरा ऋषि से पूछा था शौनक ने, शौनक एक महान गृहस्थ था, उसके भी परिवार था, उसके भी बच्चे थे, उनका देखभाल वो करता था। एक दिन उसको मन में आया कि चलो ये अंगिरा ऋषि जी बहुत तपस्वी हैं और तपस्वी से जीवन कम अशोक प्रधान जी का भी नहीं है, क्योंकि सब प्रलोभन थे इनके जीवन में। IAS बनने के बाद तो सब प्रलोभन होते हैं। जब भारतीय प्रशासनिक सेवा में आता है व्यक्ति तो बहुत जीवन में प्रलोभन आते हैं। उसी प्रकार से राजेश मिश्रा जी हैं, गीतिका जी हैं, सभी लोगों के जीवन में, मिसेस टंडन हैं, और आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, जीवन में कभी न कभी कोई प्रलोभन आते हैं। लेकिन प्रलोभन को जो जीवन में उससे पार उतर जाता है, तो मैंने कहा 2 प्रकार की विद्या हैं, एक परा विद्या है, अपरा विद्या। अपरा विद्या जो है ये सब जो आप किताबें पढ़ते हैं, बुकिश नॉलेज जितनी है, ये सब वही है। जब तत्व ज्ञान की विद्या को प्राप्त कर लेते हैं तो शौनक ने अंगिरा ऋषि को पूछा कोई ऐसा एक वस्तु बताओ जिससे पूरी संसार की वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। तो शौनक ऋषि ने कहा कि इतना महाशाल, ये महाग्रस्त व्यक्ति मुझसे ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि कोई ऐसा विद्या है जिसके जानने के बाद पूरा ज्ञान हस्तगत हो जाता है। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि एक बार शौनक तुम मुझको इसको विस्तार से बताओ, तुम जानना क्या चाहते हो। उसने जैसे मिट्टी का लौंदा होता है ना, तो मिट्टी के बर्तन जितने प्रकार के बने होते हैं, जितने आकार के बर्तन बने होते हैं, उन सब का बोध हो जाता है कि इसका जो मूल है वो मिट्टी है, ज़मीन है। वो हमारी इस पृथ्वी से सब कुछ लेकर के उनको भिन्न भिन्न आकार, किसी को घड़ा बना दिया, किसी को छोटी सुराही बना दिया, किसी को सुंदर खिलौना बना दिया, कोई हाथी बना दिया, उनको अलग अलग शेप दे देते हैं। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि ये तो बहुत प्रश्न जो है इसने बड़ा प्रोफाउंड कर दिया है, इट्स वेरी प्रोफाउंड क्वेश्चन। बहुत व्यक्ति जो है बड़ी विकसित सोच का व्यक्ति है। तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, अधिगम्यते। जीवन में जो चीज़ आपकी अनुभूति में परिणित हो जाए, ये तो आपने सब पढ़ लिया, पढ़ने के बाद जीवन में एक संघर्ष चलता है, अच्छाई बुराई में संघर्ष चलता है। और क्या अच्छाई क्या बुराई है, सिंपल मेरे पास तो डेफिनेशन है, व्हाट टेक्स यू नियरर टू गॉड इज गुड, व्हाट टेक्स यू अवे फ्रॉम गॉड इज बैड। जो आपको प्रभु के समीप ले जाए, जो आपके मानसिक स्तर को उन्नत कर दे, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखे, वही विद्या जो है वो काम की विद्या होती है, जिसको के अनुभूति में परिणत करके जीवन को एक आदर्श जीवन जिया जाता है। हर प्रकार के चुनौतियों से सामना करके व्यक्ति जब लड़खड़ाता नहीं है और अपने पैरों पर खड़ा होकर कहता है कि मैं आज मेरे पास वो विद्या है। अब हम सुंदर पिचाई का नाम लेते हैं, ही इज़ ए कंसर्ट लेवल पर तबला प्लेयर है। At the age of 40, he was professor of mathematics in Princeton University. He speaks Sanskrit. संस्कृत में उनसे आप कुछ भी चर्चा कर लीजिए, सब कुछ आपको प्रश्न भी उत्तर भी संस्कृत में देंगे। उनका नाम मंजुल भार्गव है, जो गूगल के CEO हैं। पिचाई सुंदर पिचाई है, उधर प्रिंसटन में मंजुल भार्गव हैं। बोथ आर फ्रॉम इंडिया, दोनों भारत के मूल के हैं, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। वहाँ जाकर के भी वो लोग भारत की संस्कृति का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, क्योंकि ये जो है जब व्यक्ति को जीवन में एक ठोस आधार मिल जाता है, एक ठोस आधार मिल जाता है, तो कुछ भी हो जीवन में, कितने झंझावात आए, कितनी चुनौतियाँ आए, वो व्यक्ति कभी अपने पैरों पर लड़खड़ाता नहीं है। वो खड़ा रहता है, अपने दृढ़ रहता है।
अपने संकल्प पर डट रहता है और जितना सुंदर जीवन उसका बनता है। आज आपको नज़र नहीं आ रहा होगा जो यहाँ संस्कार आपको दिए जा रहे हैं, जो कुछ जीवन में नियम हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, जो पतंजलि के अष्टांग योग है उसमें यम है। व्हाट इज यम? यम में कुछ नियम है। आप सच सच बोलेंगे, आप हिंसा नहीं करेंगे, आप किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे। कुछ ऐसे यम में है, कुछ नियम में है, फिर उसके बाद आसन में है, फिर प्राणायाम में है, प्रत्याहार में है, फिर उसके बाद ध्यान, धारणा और समाधि, 8 उसके आयाम हैं। अष्टांग, पतंजलि का अष्टांग योग है वो। योग के द्वारा आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी नहीं, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन सकते हैं जो समाज में अपना स्थान बना सकता है, जो स्वामी विवेकानंद जी के प्रकार से खड़ा होता है। मैंने क्यों स्वामी विवेकानंद जी को के नाम से एक संस्थान रखा? सन 75 से मैं रामकृष्ण मिशन से जुड़ा हुआ हूँ और जब मैं उनकी कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है। मैं भी 80 साल का हो गया हूँ और ये मुझसे बड़े हैं तो मैं उनके चरण छूता हूँ। इसलिए सोचता हूँ कि मेरे घर में मुझे संस्कार तो दिए गए हैं कि जो विनय है ना, विनय सबसे बड़ा वो है गुण है। ये सब चीज़ें आपको जब आप जीवन में आगे अग्रसर होंगे, जब आप जीवन में प्रगति करेंगे, उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे, उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि भारतीय विद्या भवन ने जो आधारशिला आपकी रखी जीवन की, वो बहुत मजबूत स्तंभों के ऊपर है। और भवन एक ऐसी संस्था है जहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग, जिनका के जो इनको हम ये कह सकते हैं दार्शनिक होंगे, बड़े जो जीवन से ऊपर उठ कर के सोचेंगे। स्वामी जी ने सोचा, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। यू शुड नॉट ओनली वर्क फॉर योर ओन सैल्वेशन बट यू शुड ऑल्सो वर्क फॉर द सैल्वेशन ऑफ अदर्स। बीइंग गुड विद इन द 4 वॉल्स ऑफ योर हाउस, यू आर बीइंग गुडी गुडी। आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन यदि पड़ोस के आदमी को नहीं पता कि आप अच्छे हैं तो कोई कभी किसी बीमारी में, कभी किसी आपदा में आपसे मदद नहीं ले पाएगा, क्योंकि आप 4 दीवारी में अच्छे हैं। सो स्वामी विवेकानंद टॉट बी एग्रेसिवली गुड। आपकी अच्छाई के बारे में समाज में पता होना चाहिए। ये व्यक्ति जो है मुझे बीमारी में, किसी आपदा में मेरी सहायता कर सकता है, मेरे साथ खड़ा हो सकता है, मुझे ढांढस बना सकता है, मुझे साथ खड़ा होगा। सो बी एग्रेसिवली गुड। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। Then he says, I want you to have muscles of iron, nerves of steel, inside which dwells a mind of the same material as that of which a thunderbolt is made. मैं चाहता हूँ कि आपके जो मांसपेशियाँ, आपके जो मसल्स हैं, I want you to have muscles of iron, लोहे के समान आपकी मांसपेशियाँ हों। I want you to have muscles of iron, nerves of steel, nerves of steel, और वज्र के समान आपका मस्तिष्क हो। स्वामी जी इज clarion call. I want you to have muscles of iron, nerves of steel, inside which dwells a mind of the same material as that of which thunderbolt is made. वज्र के समान, इस्पात के समान आपकी सनाई हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि मैंने किताब पढ़ी, छोटी सी किताब है डिवाइन लाइफ मिशन की, द थॉट पावर, विचार की कितनी शक्ति है। एक विचार आता है
प्रश्न आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, आपके मस्तिष्क में आते रहते होंगे। अभी बहुत से लोग सोच रहे होंगे बाहर के लिए, कुछ प्लान्स बना रहे होंगे, सीपी जाके खाना है, नहीं? कुछ होगा मन में चल रहा होगा, घर में ये काम है, माँ वहाँ ये होकर रहे होंगे, फादर ये कर रहे होंगे, मेरे दोस्त वहाँ खेल रहे होंगे विचार। तो दैट बुक हैज़ बीन रिटन बाय ए डॉक्टर टर्न इनटू ए मॉन्क, स्वामी शिवानंद जी। तो डिवाइन लाइफ मिशन की एक छोटी सी किताब है, द थॉट पावर। ए थॉट ट्रेवल्स faster than the speed of light. What is the speed of light? One person from anywhere you can stand and tell me what is the speed of light. हाथ खड़े कर दो, सबके हाथ खड़े होना चाहिए। वैसे तो खैर कोई भी खड़ा होकर बता दे। Tell me. That's nearly 3 lakh, kilometers per second. That's nearly the speed of light. But the thought travels faster than the speed of light. And one wicked thought, if it gets implanted in your mind, वो आपके पूरे भविष्य को अंधकार में कर देगा। कोई भी जो उन्नत विचार नहीं है, शुभ विचार नहीं है, शुभ संकल्प नहीं है, यदि आपने मस्तिष्क में उसको जगह दे दी, a wicked idea can destroy you, a noble idea can uplift you. The science of the power of thought travels, thought that travels as faster than the light speed of light. And that's a very handy quote that comes to me. Fritz of Capra was the Nobel Prize physicist. In an interview to Cain Wibbler, he said, I want you to have muscles of iron. No, what he said was, our scientists need to be Buddhas. Or else without the holistic vision of oneness of mankind, the rational science is going to destroy civilization. So you have to not only learn physics, but you have to learn metaphysics. You have to go beyond the physical self. वो जो साइंस है वो भवन में पढ़ाई जाती है। हम भौतिक चीज़ों के भौतिक ज्ञान को, भौतिक विज्ञान को जानना चाहते हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान के जो नोबेल प्राइज फिजिसिस्ट थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम जब तक ये सब हम एक हैं, हमें एकत्व का दर्शन होता है, वो प्रभु विद्यमान है हमारे आप सबके हृदय में, जब तक ये इसका अनुभूति नहीं हो जाएगी, तो ये जो साइंस है ये पूरे विश्व को नष्ट कर देगी। I want to what he says is a Kleiner called Cain Wibbler was another Nobel physicist. So Fritz of Capra, a Nobel Prize physicist, in an interview to Cain Wibbler, another Nobel Prize physicist, in a book he writes, our scientists need to be Buddhas, or else without the holistic vision of oneness of mankind, the rational science is going to destroy civilization. यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि न पश्यति, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि न पश्यति, सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मनुभूत विजानतः तत्र को मोहः को शोकः एकत्वं न पश्यते. When you see the oneness of all mankind, the entire humanity, the whole lot of living and non-living objects, they have the presence of God. When you see God within the physical framework of man and women and children and objects not so living and स्थावर है, जंगम है, चलता है, फिरता है, पत्थर भी में भगवान है, वो प्रार्थना करनी सीखो हृदय से। वो हृदय जो है वो करुणामय हृदय बनेगा, अच्छे संस्कारों को उदय होगा। ये पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य जो हमारी जो ज्ञान विज्ञान है वो भी साथ साथ सीखिए, लेकिन जो संस्कृति भारत की है और जो संस्कार भारतीय हैं वो आपका मेरुदंड है,
यू नो व्हाट इज मेरुदंड? मेरुदंड है आपका, मेरुदंड नहीं आते हैं, ये स्पाइन जो होता है इसको मेरुदंड बोलते हैं भाई, है ना, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसका मेरुदंड बोलते हैं। And most of the children have the wishbone, but not the backbone. I want to be this, I want to be that. You have all sorts of dreams. But to materialize those dreams, you need a very firm determination. Very firm determination. देखिए, मेरा एक प्रस्तावना है, क्योंकि 2 लोग नहीं 3 लोग मेरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो मिसेस टंडन से आज मुलाकात हुई है कि जब भी आपको कोई AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल डेटा साइंसेस, या आपको कोई भी कंप्यूटर साइंसेस के बारे में, या कोई भी जिस भी ब्रांच में आप चाहें, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन है, लॉ है, लॉ के दिग्गज बैठे हैं यहाँ जो नेशनल स्कूल बेंगलोर में 10 साल प्रोफेसर थे, भी प्रोफेसर एमराइटस हमारे यहाँ, चेयरपर्सन स्कूल ऑफ लॉ के डॉक्टर सोनानी प्रिया है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंग्लिश की हैं। तो हम भारतीय विद्या भवन के छात्रों को यहाँ प्रधान साहब की उपस्थिति में कहना चाहते हैं, जब भी आप आएँ लैब इस्तेमाल करें, उन सुविधाओं का लाभ लें। आपका जो प्रबंधन समिति है उसकी ओर से लिखा हो, ये बच्चा वाकई बहुत कुशाग्र है, बुद्धि का व्यक्ति है ना। आप लोगों का एक यहाँ से सर्टिफिकेट ज़रूरी है। जो लोग आएंगे उनका स्वागत करेंगे, और वही जो भाव है जो स्वामी जी ने हमको दिया था, हम क्योंकि जो कुछ मेरे पास है वो रामकृष्ण मिशन का है, और हमने एक वहाँ ध्यान केंद्र भी बनाया है, जिसको हम इनर स्पेस बोलते हैं, ध्यान केंद्र भी है वहाँ। तो हमेशा महकता रहता है वो प्रधान साहब। तो वो जो है वो कोई बातों के करने के लिए तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन समझता हूँ कि जीवन में अनुसरण करने के लिए और उनको जीवन में जीने के लिए एक पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए कि जो कुछ आपका भवन दे रहा है वो बहुत बहुमूल्य है। ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपको, लेकिन इसके बाद भी आपको संस्कार काम करेंगे, आपकी जो मनोवृत्ति है वो काम करेगी, आपका जो कैरेक्टर चरित्र है वो काम करेगा। क्योंकि हम लोग हैं, वी आर एंगेज्ड इन द मिशन ऑफ मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग। वो व्यक्ति हो चरित्रवान हो, उन्नत चरित्र का व्यक्ति हो, उसका जो आचरण हो वो आदर्श हो, और फिर वो जिम्मेदारी का एहसास भी करे कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरा कुछ दायित्व जो है अपने देश के प्रति बनता है। सो वी आर एंगेज्ड इन द मिशन ऑफ मैन मेकिंग, character building and nation building. But 3 things that we expect from our students is the right conduct, आचरण आदर्श होना चाहिए, सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का बोध होना चाहिए, एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको बहुत जिम्मेदार नागरिक के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में क्या क्या आपके कर्तव्य हैं वो आपको सबको बोध होना चाहिए उसका। तो मैं बहुत अभिभूत हूँ, बहुत भाव्यबल भी हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भवन ने हमारी पूरी संस्कृति को एक नई ऊर्जा दी है, नया शक्ति दी है। और प्रधान साहब जैसे व्यक्ति यहाँ होंगे तो निश्चित रूप से एक उन्नत राष्ट्र बनेगा, उन्नत भारत बनेगा, और विकसित भारत जिसकी दिशा में हम काम कर रहे हैं वो विकसित हो पाएगा। राजेश जी का, गीतिका जी का, प्रधान साहब का, मिसेस टंडन का, और आपके सब हमारे फैकल्टी को समय लिया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू। Thank you so much, sir, for sharing your vision and pearls of wisdom with all of us.
आई एम श्योर योर एम्फसिस ऑन नेशन बिल्डिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग एंड जिस तरह से आपने स्वामी विवेकानंद जी के मेन आइडियल्स को हमारे स्टूडेंट्स के सामने रखा है, हमारे स्टूडेंट्स को एक डायरेक्शन मिलेगी और हमारे देश के प्रति वो एक अच्छा योगदान दे पाएंगे. सो थैंकफुल टू यू सर. I would now like to request Sri Rajesh Mishra ji to please come and propose the vote of thanks. धन्यवाद सर. बहुत ही सारगर्भित और प्रेरणादायी आपका जो भाषण था वो था, और मेरे ख्याल से हमारे बच्चों ने आत्मसात किया होगा. किया है कि नहीं किया है? आप ये मत पूछना कि आत्मसात का मतलब क्या होता है. क्या होता है आत्मसात का मतलब? एब्जॉर्ब किया. वी आर वेरी लकी टू हैव द ग्रेशियस प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर एस.सी. वत्स. आपको पता है डॉक्टर एस.सी. वत्स जो हैं वो रियल में डॉक्टर भी हैं. एक ताली तो हो ही जाए. फिजिक्स, मेटाफिजिक्स के बारे में जिस प्रकार से वो धारा प्रवाह बोल रहे थे उससे ही एहसास हो जाना चाहिए था. ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुझे मालूम है लेट हो गए हम काफ़ी. फिर भी एक दो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. सर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि विद्या, बहुत अच्छा श्लोक है संस्कृत का, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम. विद्या ददाति विनयम विनयादाति पात्रताम पात्रत्वा धनमापनोति धनात् धर्म तथा सुखम. तो सुख जो है तभी प्राप्त होगा जब आपको अच्छी विद्या प्राप्त हो. वी आर वेरी लकी टू हैव द ग्रेशियस प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर एस.सी. वत्स, जिनका कि मेरे ख्याल से दिल्ली में बेस्ट इंस्टीट्यूशन है एज फार एज दी एडवांस कोर्सेज आर कंसर्न. और उन्होंने आप लोगों को इनवाइट भी किया है. जब आप आना चाहें, एक हमारे यहाँ से लेटर जाएगा. मैं मैडम हमारी डॉक्टर अंजू टंडन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बैचेज में वहाँ की जो लेबोरेटरीज़ हैं तरह तरह की एडवांस, एक एक दिन बच्चों को भेजिए और भेज के बच्चे वहाँ पर जाकर यदि फ़ायदा उठाते हैं तो ये हमें काफ़ी अच्छा रहेगा भारतीय विद्या भवन के लिए. इसके लिए तो ताली होना चाहिए सर आपके इन्विटेशन के लिए. एक छोटा सा वीडियो है, यदि है पुष्पेंद्र जरा दिखाओ. Smart person is not who learns 10 things. No. Smart person is the one who learns one thing and utilizes it at 10 cases by customizing it. Smart person is not who learns 10 things. No. Smart person is the one who learns one thing and utilizes it at 10 cases by customizing it. ये डॉक्टर तनु जैन हैं और आजकल जो विकास दिव्य कीर्ति सर है उनके यहाँ मॉक इंटरव्यू लेते हैं आईएएस का. सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम पास किया था, वो उन्होंने छोड़ दिया है. इनके काफ़ी अच्छी रील्स हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा. और सबसे बड़ी बात यही है कि आगे बढ़ने के लिए जहाँ जहाँ से अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है उसको ग्रहण करना है. एक छोटी सी कविता शेयर करने के बाद फिर मैं आप लोगों से विदाई लूँगा. बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों में जो डॉक्टर साहब ने कहा है उसको उकेर दिया गया है, उसको लिख दिया गया है. इसको कितना आप लोग एब्जॉर्ब करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है. बदलो अंदाज जरा देख सुन समझने का. बदलो अंदाज जरा देख सुन समझने का. जियो एहसास करो पलों के गुजरने का. यूं तो ये वक्त कैसे भी गुजर जाएगा. मंजिलें लापता बेकार सफर हो जाएगा. बंद आंखों में कोई नूर झलक जाता है. बंद कानों को मधुर तान सुना जाता है. भीड़ से दूर बसी मस्ती की बस्ती में रहो. वहां तन्हाई में शहनाई को सुना जाता है. राह में यूं ही चले जा रहे बेखबरी से. राह में यूं ही चले जा रहे
बेखबरी से। कहाँ शुरू हुआ सफर कहाँ ले जाएगा, सिरों पे लाद के झूठी उम्मीद की गठरी, सिरों पे लाद के झूठी उम्मीदों की गठरी। कोई पहुंचा नहीं, तू कैसे पहुंच जाएगा। अगर तू मान ले तो कायनात तेरी है, नदी पहाड़ तेरे सुबह शाम तेरी है। वो देख हद्दे नजर तक जमीन तेरी है, गुलों के रंग महकती हवाएं तेरी हैं। तू सिर्फ एक मकान मतलब घर अपना क्यों समझता है, तू सिर्फ एक मकान अपना क्यों समझता है, अपने नाम को भी अपना क्यों समझता है। क्यों नहीं मानता सारा जहान तेरा है, तेरी जमीन है और ये आसमान तेरा है। सभी हमारा है तो चाह खत्म होती है। डॉक्टर साहब ने ये बात कही है। ये अंतहीन चक्र और राह खत्म होती है, फिर वही सूर्य नए सूर्य सा चमकता है, चांद उगता है, स्याह रात खत्म होती है। ये डॉक्टर साहब ने जो बातें कही उसका ये निचोड़ है। सुकरात से पूछा था कि बताओ भाई ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। सुकरात ने कहा, सुकरात या सोक्रेटिस, कि अपने मन को झांक लो, ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा। और आखिरी में एक छोटा सा शेर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, सुनना चाहेंगे? मैं खोल लूं फोन? वेरी गुड। चलो आ गया, बजा लो भाई, ताली बजा लो। एड़ियों पर ही थोड़ी देर खड़े हो जाओ, उससे कुछ बड़े होते हो तो हो जाओ। तो बड़प्पन जो है वो एड़ियों पे खड़ा होना नहीं है, अपने आप को बड़े करने के लिए बड़प्पन रखना है और बड़ी बातें सोचनी है। सरपरस्ती भी कही जाए तो बस ये नाम की है, सरपरस्ती भी कही जाए तो बस नाम की है। ऐ आसमां तेरी बुलंदी किस काम की है। तो आसमां जो है, आसमां की बुलंदी हासिल करने के लिए डॉक्टर एस.सी. वत्स से मिलना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमारे बच्चों का मन मोह लिया और बड़ी हिम्मत दी। सबसे बड़ी बात यह है कि वी आर ईगरली वेटिंग टू एसोसिएट विथ विप्स इन द कमिंग डेज। एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, हमारे बच्चे भी अच्छी संस्थाओं में जाएं, विप्स में जाएं, स्पेशली टेक्नोलॉजी के कोर्सेज में। ये हमारी बहुत बड़ी सफलता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अशोक प्रधान साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने फोन देख के बोल रहे थे ना, फोन देख के बोल रहे थे ना। हाँ, बिना फोन देखे बोलेंगे तो मैं ही फोन देख के बोलूँगा। अगर ऊपर वाले के साथ है, अगर ऊपर वाले के साथ है, ये कहते यदि ऊपर वाले के साथ आपके संबंध मजबूत हैं, यदि ऊपर वाले के साथ आपके संबंध मजबूत हैं
तो धरती वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि ऊपर वाले के साथ आपके संबंध ठीक हैं तो धरती वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परमात्मा की तस्वीर लगाओ मन में अपने कक्ष में, फिर सारे फैसले आएंगे, देखते जाओ आपके पक्ष में। Thank you, sir. Thank you so much for sharing the last anecdote. And I think on this note, we can come to a conclusion of this particular session. I am thankful to all the dignitaries for sharing their valuable wisdom with us. And thanks to all our faculty members and dear students. We can call this, the session ends here. Thank you so much.